हाय, दिस इज़ करण मेहता और आज मैं फ़िल्मी बीट पे अपना वर्कआउट रूटीन आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए, लेट्स वर्कआउट। तो बेसिकली यूजुअली एक हफ्ते में आप अलग अलग टाइप के वर्कआउट करते हो, बट टुडे आई एम गोना बी डूइंग एवरी बॉडी पार्ट एंड शो यू हाउ आई गो अबाउट माई वर्कआउट। ओके, तो मैं एक हफ्ते में 5 से 6 बार जिम कर लेता हूँ। एक दिन रेस्ट के लिए ज़रूर रखता हूँ। और यूजुअली जब मैं कोई प्रोजेक्ट शुरू करने वाला होता हूँ या कोई फ़ोटो शूट करना होता है तो मैं एक डाइट फॉलो करता हूँ। यूजुअली भी मैं घर का ही खाना खाता हूँ, घर पे जो मम्मी का हाथ का होता है। सो हमेशा डाइट ही होता है वो, बट कभी कभार आप रोटी नहीं खा सकते हैं, एक रोटी भी नहीं खा सकते हैं। सो देन आई कट डाउन, बट यूजुअली मैं एक नॉर्मल डाइट पे हमेशा रहता हूँ। मैं डिपेंड करता है, कभी 1.5 घंटा अगर अच्छा दिन हो, 1 hour 45, समटाइम्स 1 hour if I'm doing cardio, but yeah, I mean 1 hour 10, 1 hour 15 एब्स भी अब एंड में कर लेते हो तो या अराउंड दैट टाइम। तो डिफ़िकल्ट तो ज़रूर होता है, बट अराउंड अगर शूट आपका 2 बजे का है तो आप सुबह उठ के वर्कआउट कर लो। अगर आपका सुबह सुबह वर्कआउट है तो रात को आप थोड़ा कर लो। बट आई थिंक मोर देन एनीथिंग व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप कंसिस्टेंट रहो। कि अगर आपने जिम में जाके, ज़रूरी नहीं कि आप हैवी वेट मारो, बट आपने जाके थोड़ा कर लिया तो दैट्स गुड इनफ। तो यूजुअली अपने वर्कआउट शुरू करने से पहले मैं साइकिल पे जाता हूँ टू ओपन अप माई जॉइंट्स, और ताकि मैं इंजरी से सफ़र ना करूँ। सो आई स्टार्ट ऑफ विद द बाईसाइकिल, आई डू इट फॉर 5-10 minutes, सो आई एम जस्ट गोना गो अबाउट इट। So I usually start with like a resistance band and I do shoulder external, what do you call it? Rotation. Shoulder external rotation. I don't know the names, but I can do it. So this is how we go about it. तो like my trainer said कि खुद के body weight से करना pull-ups बहुत ज़्यादा important है. And what's important is to maintain your breathing. It's very important to breathe in at the right time and breathe out. If you hold your breath, I mean, it's just going deeper into a workout. It's very important to breathe. So yeah, like I said, I mean, the breathing is very important, that you breathe in and breathe out at the right time, and so is the mic, because without the mic you won't be able to hear us. So I think we're going to move on from push-ups to cable cross. I'll show you guys what cable cross is and how we do it. Let's go. But now I think we're going to do parallel bar dips for the triceps. So let me show you how it works. A compound exercise, and it's this one that we were working on right now is for your triceps. That are here consists of 3 muscles. Very important information. Now we worked on the front shoulders, so now we are going to do lateral raises for the middle shoulder. So let me show you how that works. Like I said, that this is called the seated rowing, and it's for your mid back. Another important thing that I want to add is that it's very important to have a muscle mind connection. If you're doing a particular muscle and your mind focuses on that muscle, it really helps you build better. If you are here working out and your mind is distracted, it doesn't work the right way. It doesn't go together.
I think this is something that my trainer keeps saying, that it's important to have a muscle mind connection. So when you're doing a workout or an exercise, तो आप अपना जो mind है उस muscle पे focus करो, and I think वो try करो और देखो कि कितना फ़र्क पड़ता है. So I'll just do this, मैं करता हूँ and show you how I do it. So as important as these exercises are, उतना ही important पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना. बिकॉज अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तो आपके मसल में फटीग होने का चांसेस ज़्यादा है, करेक्ट हो ना? हाँ, और क्रैम्प्स होने के बहुत चांसेस है. तो इसलिए पानी पीना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप दिन में अगर 2 से 3 या 3 से 5 लीटर पी लें तो वो बहुत अच्छा है. टॉक्सिन्स जो है वो भी क्लियर हो जाते हैं, एंड स्किन है वो भी बेटर हो जाती है, आप बेटर फील करते हैं और क्रैम्प्स नहीं आते हैं. सो मैं अपना पानी इंजॉय करता हूँ. उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू बाइसेप कर्ल्स. दे वर्क ऑन योर ऑफ कोर्स बाइसेप्स. सो आई जस्ट टेल यू हाउ आई डू माइन आफ्टर दिस. So I think हमने हमारा वर्कआउट पूरा कर लिया. वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. चेस्ट कर लिया, बैक कर लिया, ट्राइसेप कर लिया, बाइसेप कर लिया, लेग कर लिया. अब मैं पहले 104 kgs का था. थोड़ा मोटा था मैं, बट मेरा जो मोटिवेशन और डेडिकेशन था कि मुझे पतला होना है, बॉडी बनानी है, वर्कआउट करना है, एक्टर बनना है, और मैंने उसको पूरा किया. मुझे 1 साल लगा सारा वेट कम करने में, बट यही इम्पोर्टेंट था कि घर का खाना खाना और वर्कआउट करना. तो दैट्स वर्क फॉर मी. और मुझे लगता है कि ये सब आप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप तो 100% कर सकते हैं. सो वही है, बस करना इम्पोर्टेंट है और आप करिए. तो मेरी जो लास्ट फिल्म थी ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप, उसमें भी सर को बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी. मेरे 2 कैरेक्टर प्ले किए थे. एक में उसका थोड़ा शांत सा था, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा नहीं थी. दूसरे में वो थोड़ा खुला डुला था, पार्कोर करता था. तो मैंने अलग ट्रेनिंग भी किया है उसके लिए, पार्कोर की. और उसके लिए एक अलग स्पेशल डाइट थी, क्योंकि मैं पार्कोर कर रहा था, डांस कर रहा था, वर्कआउट कर रहा था. तो मेरी डाइट भी अलग थी. बट बहुत मज़ा आया उसको करने में. लोगों को बहुत पसंद आया, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने इतने सालों उस पर काम किया और एंड में जाके लोगों ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया. तो बहुत अच्छा लगता है. हर दिन मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ, अभी भी आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है आगे काम करने के लिए. अलाया का वर्कआउट थोड़ा अलग है, वो योगा करती है. इनफैक्ट अभी हम सारे के गए थे ट्रिप पे, तो वो हमारी योगा इंस्ट्रक्टर बन गई थी. सबको योगा सिखाने लग गई थी कि योगा कैसे करते हैं. बहुत अच्छा है एक्चुअली में. योगा इज़ वेरी गुड माइंड के लिए, सोल के लिए और बॉडी के लिए. सो इट्स समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू नाउ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. जी, अभी इस समय मैं टॉक्स में तो हूँ. देयर आर अ फ्यू पीपल दैट आई एम टॉकिंग टू. मैंने कुछ ऐसे साइन नहीं किया अभी तक, क्योंकि मैंने अब एक फ़िल्म कर ली है और मेरे लिए इस समय इम्पोर्टेंट है कि मैं किसी चीज़ में जंप ना करूं, क्योंकि दिस इंडस्ट्री आई थिंक आपकी पेशेंस को बहुत टेस्ट करती है हर पॉइंट पे. तो मैं इसको बहुत कामली और बहुत कंपोज्ड मैनर में अपना टाइम लेकर हर इंसान से मिलकर, जहाँ पर भी ऑडिशन देना ऑडिशन दूँ, और जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वो करूँ. मैं यही कहना चाहूँगा कि मोर देन एनीथिंग कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर आप एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसको ऐसे ख़त्म मत होने दो, बस करते रहो. एक दिन आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा. तो अगर आप देख रहे हैं कि आपको 5 दिन में रिज़ल्ट चाहिए, वो उस चीज़ की गारंटी नहीं है. पर अगर आप करते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर आएगा. तो वो इम्पोर्टेंट है. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी.